السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. وہ سناؤ تھی. چلو سناؤ. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. یہ والا شعر سناتا ہوں نا تو پھر ابا رونے لگ جاتا ہے. ہے ہی ایسا شعر. ابا کہتے ہیں ہم جو بے سہارا جو لوگ ہیں نا بے بس کہتے ہیں ان کی تسلی کے لیے تو یہ شعر ہی کافی ہے. بے شک کافی. اس سے کہتے ہیں ابا. ہاں بالکل یہی صحیح کہتے ہیں تمہارے ابو. بڑا مزہ آ رہا ہے آج کل. اماں کہتی ہے کہ یہ جو آخری اشرا ہوتا ہے نا اس میں فیکہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے معافی مانگ لو. اللہ پاک بہت سنتے ہیں. روزے ٹھیک گزر گئے سارے. ہاں چھانے نے بھی اس دفعہ 6.5 روزے رکھے ہیں. وہ یار پچھلی دفعہ بھی میں نے پورے رکھے تھے, بس 2 چھوٹ گئے تھے بخار کی وجہ سے. ہاں تو اس دفعہ تو 6.5 رکھے ہیں. ہم دونوں جاتے ہیں, تراویاں بھی پڑھتے ہیں, افطاری بھی مسجد میں ہوتی ہے. روزے تمہارے تو پورے ہیں نا. ہاں میں سارے اللہ کے فضل سے روزے رکھ رہا ہوں. افطاری بھی ادھر کرتے ہیں تو پھر تراویاں بھی ساریاں پڑھی ہیں. اچھا. تراویوں کے بعد بھی پھر ادھر آج کل تو کیا کہتے ہیں نا تاکڑاتے ہیں تو ادھر ہم بڑی پڑھائی کرتے ہیں. اچھا سچ بتاؤ, تراویوں میں شرارتیں بھی کی ہیں نا؟ میں نے کی ہوں گی. میں نے نہیں کی. وہ تو امجد نے میرے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا سی. اچھا. تو میں نے پھر اس کو کہا تھا, میں نے کہا کہ میرا ابا کہتا ہے مسجد میں شرارتیں کرنے سے بہت گناہ ہوتا ہے. میں نے کہا ابا میرا کہتا تھا کہ جب تم اپنی کسی پھوپھی کے گھر جا کے شرارتیں کرتے ہو تو اس کو کتنا غصہ چڑھتا ہے. تو اللہ پاک کے گھر میں کوئی شرارت کرے گا تو وہ تو بہت ہی بری بات ہے. اللہ پاک پھر ناراض ہوتے ہیں. ابا کہتے ہیں ایسے نہیں کرتے. میں نے پھر امجد کو سمجھایا تھا نا تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے ہم نہیں شرارتیں کرتے. بابا حاجی ہے نا جو وہ بھی کہتے ہیں کہ پتر ایتھے آندے ہوتے پھر راج کے اللہ نو یاد کرو, شرارتاں بارک جا کے کریا. اچھا نا تو دس رہا تو مسیطے جیب چ کیلے پالے سی. کیلے پالے سی. وہ تو افطاری تقسیم کی تھی انہوں نے تو سب کو 2 کیلے دیے تھے. تو میں نے نہیں تھے کہا, میں نے جیب میں رکھ لیے تھے. میں جا کے کارڈ اپنی اماں نو دے دیتے سن. تم یہ افسر ہے. ہاں بتایا تو تھا یار, یہ سوشل ویلفیئر آفیسر ہے یہ والا. ہاں اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہیں. تم نے کہاں دیکھ لیا؟ پرائمری سکول لگے آپ گلا چوڑن نہیں بیچ. وہ کوئی اور ہوگا, شکل ملتی ہوگی. ہاں برا نہ منائیے گا سر, مست ہے. یہ اتنی گرمی پہ رہی ہو تو آگلا چورن کہہ رہی ہے. سوشل ویلفیئر آفیسر ہے اور بہت سینئر آفیسر ہیں یار. وہ کیا ہوتے ہیں سوشل؟ اور یار سوشل ویلفیئر آفیسر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. لوگوں کے بہبود کے لیے. چلو اپنا ببود توندا نہیں تے لوکاں دا ببود پئی. تم صبح اٹھ کے اپنا ببود توتے ہو. تینوں میں پھڑ لیا نا تو تیرا ببود بن دینا میں. اب ببود سنبھال کے گل کر. ਇਹਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਕਿਦੋਂ ਮਾਲਟਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਦੋਂ ਕਿੰਨੂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ.
तरबूज ले आ। मैं फैक्ट्री में भी काम करता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं सारा दिन पेंट कोट पा के हैट पा के ते उथे खलो के ते खंबे नाल गल्ला करदा रहना। आराम से बात करो, तुम्हारी फैक्ट्री पे छापा मार देगा। ये वाला हाँ जी, ये बबूत साहब हाँ बबूत साहब। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ। नाम काले अपनी लो पेंट कोट पा के ते हैट पा के अंग्रेज बनी आया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ अंग्रेजी महीने की 13 तारीख है। सर माफ कर दे, मस्त है। ਮਸਤ ਹੈ, ਜੁਗਤਾਂ ਏਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮਸਤ ਹੈ ਮਸਤ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੂ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਲ ਕੇ ਟੋਰੀਆਂ। सर माफ कर दे। ਉਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। उई, गुस्से में डार्क बनाऊनो। यार तुम्हें उनकी पावर का अंदाजा नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्री बंद करवा सकते हैं। ए चाड़ी है कि इनू होड़ जुगतां करो। ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा फीके, ईद सर पे है यार, उसकी तैयारी कैसी है? ईद के तो अभी 3-4 दिन रह गए हैं। हाँ, हमने मैंने इस दफा पता क्या किया थी? ईद के नजदीक तो कपड़े बड़े महंगे हो जाते हैं। नए कपड़े बनवाए या नहीं यार, ये बताओ। मैं तो सबसे पहले अपनी बहन नन्नी के लिए सूट खरीदता हूँ। ये बड़ी अच्छी आदत है। वो मैंने पता क्या किया, मैंने 2-3 महीने पहले ही खरीद लिया थी। अपने नए कपड़े बनाए कि नहीं, नहीं? मैंने वो नन्नी का सूट खरीद के ना तो छुपा दिया था गाड़ में। वो तो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ अपने लिए नए कपड़े बनाए कि नहीं? नहीं, मेरा भी नया सूट हो गया है। हो गया क्या मतलब, नया सूट नहीं खरीदा? नहीं, मैंने अभी मेरी खाला के बेटे की शादी हुई थी ना 3-4 महीने पहले। हाँ। उसमें मैंने सूट नवा मुझे अम्मी ने बना के दिया था। तो वो तो पुराना हो गया होगा। नहीं, नवा हो गया, फर्स्ट क्लास। उसका सिर्फ इधर से कफ पाड़ गया थी। जब हम गांव गए थे ना तो उधर से टांगे से उतरा था ना तो उसमें फंस के तो उसका कफ पाड़ गया थी। वो तो बेकार हो गया ना। नहीं, अम्मा जी ना उसको कफ भी नवे लगा दिए ने इधर पट्टियां, तो उसी कलर की इधर भी पट्टी लगा दी है। अम्मा बड़ी समझदार है, बटन भी उसके नए लगा दिए हैं अम्मा ने। तो वो बिल्कुल नया सूट बन गया है। मैंने तो पहचाना ही नहीं था। अम्मा ने मुझे दिखाया, क्या मैंने तेरा नवा सूट बनाया है? तो मैंने देख के क्या मैंने कहा जो इतना प्यारा है। तो फिर अम्मा ने मुझे बताया था, कहती वो तेरा सूट खाला देवी मुंडे देवी आते निश्चित पाया जिदा का पार। और मैंने कहा ये बीच में तो वही है। वो अब बिल्कुल नया बन गया, वो मैं ईद पे पहन रहा हूँ। और नन्नी का भी नवा सूट बन गया है। तो अम्मा के अब्बा कहने ने ईद बच्चियों की होती है तो हमारे भी नवा ही है। मैंने क्या थी, मैंने कहा मेरे वाला सूट अब्बे को दे दे, नवा बन गया। तो अब्बा कहते नहीं पुत्र मेरा भी है तो यही पहन लो। तो मैं नहीं कहता अपनी अम्मी को, मैं खुद ही वो बना दे तो बना देती है। तो फैक्ट्री वालों ने तुम्हारे लिए कोई बोनस अलाउंस कोई कुछ नहीं किया ईद के? अब बबूज को ले पूछो। आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, इन मजदूरों की ईद के लिए आपने क्या किया है? क्यों नहीं किया जी, बहुत कुछ किया जी। मैं दौड़ ला के इन्होंने दस के आया कि सवेरे 8:30 बजे ईद दी नमाज होनी चाहिए। बैनर भी लग गया है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर देख ले अपने। अफसर है यार, बताया तो है। और तुम्हारी बेहतरी के लिए जो ऑफिसर काम करते हैं ना, ये वो है बबूत वाला। बबूत वाला। ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੂਲੇ ਦੇ ਹਾਰ ਚੋਂ 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਣ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਵੜ ਕੇ ਬੰਜੇ ਫੜ ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਾਜਾ ਸਹੀ ਵਜਾਇਆ ਕਰ। यार मैं तो बता रहा हूँ तुम्हारी फैक्ट्री को ताला लगवा सकता है इतना बड़ा ये बंदा। ਇਹ ਅਫਸਰ हाँ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਤਾਲੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਤਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਧ ਉਤੋਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੱਬੂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾੜ ਆਪਣੀ। सर मेरे मुंह को माफ कर दे। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਸਮਾਲ ਲੈ। ਇਤਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਕੇ ਲੋ ਪਾੜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡੜ ਕੇ ਫਟਾਟ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਐਕਸਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ। सर माफ कर दे, मासूम है। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਕਰ। ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੈਲਪ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਾਸੂਮ इस तरह के जो अफसर होते हैं ना, यार बस करो यार, बस करो। इस तरह के अफसर, इस तरह के अफसर। ये चाड़ के कोड करी। इस तरह के अफसर दफ्तरों में कस्में उठा के शहद बेचते। अगर कोई माने ना तो जेब में से मक्खी निकाल के भी दिखाए। ऑफिसर साहब आप और जी अफसर मैं रिटायर हो गया, छठी नौकरी में। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैत ये ईद के दिनों में चूंकि शॉपिंग और कपड़े बड़े खरीदे जाते हैं, तो मेरे येन में आ रहा था कि गो अब बड़े वन सवन्ने और बड़े बड़े डिजाइनों के और बड़े बड़े क्वालिटी के कपड़े आने शुरू हो गए हुए हैं। मगर एक कपड़ा हम बचपन में सुना करते थे, रेशमी कपड़ा, वो नहीं अब कहीं डिस्कस होता या नजर आता, वो किधर चला गया। खालिस रेशम ही नहीं मिलता, जैसे खालिस शहद नहीं मिलता। अच्छा, उसकी पहचान बतानी पड़ती है, इसी तरह खालिस रेशम भी नहीं मिलता। अब बिल्कुल अब तो रेशमी कपड़ा नजर ही नहीं आता, फिल्म स्टार रेशम नजर आ जाती है, रेशमी कपड़ा नहीं नजर आता। हमने एक बार खालिस शहद की पहचान डिस्कस की थी, खालिस रेशम की क्या पहचान होती है भला? क्या जी? एक तो ये होती है कि आप उसको रगड़े तो हरारत पैदा होती है, आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। अच्छा। एक बुजुर्ग जो बताते हैं रेशम की पहचान कि आप पूरे थान को एक अंगूठी में से गुजार सकते हैं, वाह वाह वो वाह, इतना मुलायम होता है। यानी ये सर्कस में भी काम करता है। और एक ये कि अगर आप रेशम के कपड़े का एक टुकड़ा लेके जलाएं तो उसमें से वही स्मेल आती है जो बाल जलने से आती है। अच्छा। और वो उसी वक्त तक जलता है जब तक उसका शोला कायम रहता है। अच्छा। हाँ। और जो शहद की तरह, शहद की भी एक पहचान है कि जितना पुराना उतना अच्छा। इसी तरह जितना पुराना रेशम होगा उतना खूबसूरत और उतना ज्यादा नर्म हो जाता है, उतना ज्यादा मुलायम हो जाता है। और सर पहले वक्तों में नानियां दादियां रेशम के सूट बना के बच्चियों के लिए रखती थी और बताती थी कि इतना पुराना है ये। नहीं तो ये किधर गैब हो गया, ये बनता किससे था? हाँ हॉका ही है। किधर गया? ओके हाँ चीचियां। आज से 15 साल 20 साल पहले पाकिस्तान में 3 शहर रेशम के हवाले से बहुत यानी शोहरत याफ्ता थे। एक सवात, छांगा मांगा और मेरा साहिवाल उकाड़ा के साथ। लजी मुझसे कसम चकवा लो, मेरे येन में ये था मैं चौकाड़ा ना पाल। वही बात है, यानी साहिवाल है और उसको भी तुरू के उकाड़े में घसेड़ दिया। मेरा शहर साहिवाल यानी उकाड़ा, साहिवाल। और ये तुम क्या वारदात करते हो? वजीराबाद, सियालकोट, कोई बंदा पैदा हो, सारा गुजरा वाला ये भी गुजरा, और रावलपिंडी। यार अगर जहाज में जाओ तो 15 मिनट लगते हैं यार, जहाज में जाओ तो जहाँ मर्जी चले जाओ। भाईजान मैंने कभी भी नहीं ये कहा वजीराबाद गुजराले की तहसील है। तहसील है। अच्छा जी, ये जो रेशम पैदा करने वाला शहर है अकाड़ा यानी कि साहिवाल, ये क्यों अब नहीं पैदा करता रेशम? 30,000 किलो हम पैदा किया करते थे रेशम हर साल। अच्छा। अब वो 5,000 किलो रह गया है। 30,000 किलो से 5,000 किलो रह 25,000 किलो जो है वो गैब हो गया। गायब हो गया। और यकीन करो वो पोटेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान जब हम डिस्कस करते हैं, खून जलता है,
अभी आज भी अगर ये हुकूमत तय कर ले तो हम 2 साल के अंदर अंदर अपनी जरूरत का सारा रेशम पैदा कर सकते हैं, और फिर अगले 2 साल के दौरान हम कम से कम $1 अरब का 50 करोड़ डॉलर का हम खुद रेशम 2 साल में पैदा कर सकते हैं, और फिर अगले 2 साल में मजीद 50 से 60 करोड़ डॉलर का रेशम पैदा करके हम इसे आसानी के साथ $1 अरब तक लेके जा सकते हैं। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। जरूरत क्या है कि हमारे यहाँ शहतूत खत्म हो गया। शहतूत का दरख्त इतनी बेदर्दी से काटा गया, बात इतनी रेशम बेदर्दी। की हो रही है, विच शहतूत जलेबा डाल लिया। नहीं तो शहतूत जो रेशम जो है वो जो अपना रेशम बनाता है वो जलेबियों की दुकान से लेके आता है। नहीं हाँ। रेशम जो भाई बनाता है वो क्या उसका साथ शहतूत उसकी का बाप? फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल है रेशम के कीड़े की। रेशम का कीड़ा वो शहतूत में से निकलता है। हाँ जी, रेशम का कीड़ा जो है वो शहतूत के पत्तों से, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर तुम देखो कि एक खातून ने कोई रेशम का सूट पहना हुआ है, उसको नहीं पता कि एक कीड़े ने ये 70 किलो शहतूत के पत्ते खाए हैं तो उसका एक सूट बना है। हाँ जी। मेरा ख्याल है फिर ये रेशम के कीड़े ने पहली रिवाज लगाई है, शहतूत जलेबा ने। कुदरत की सन्नाइयत एट इट्स बेस्ट। खुदा के कसम तुम देखो कि कभी इसको हमें देखना चाहिए। बच्चों को तो हमें नहीं पता, तो बच्चों को आगे क्या पता होना है कि रेशम का एक कीड़ा जिस तरह रेशम बनाता है ना, ओ अल्लाह ताला उस आपको खुदा नजर आता है कि ये कैसे, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है यार, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है। 1 मिनट के अंदर अंदर रेशम का एक कीड़ा 15 मीटर लंबी तार रेशम की बनाता है 1 मिनट के अंदर अंदर। कितनी स्पीड से वो बनाता है। ऐसे कारीगर तो अब पाकिस्तान में खत्म ही हो इंसान गए। नहीं बना सकता, इंसान नहीं बना सकता। रेशम का कीड़ा जब पैदा होता है तो विद इन 35 डेज 35 दिनों बाद वो अपने वजन से 10,000 गुना ज्यादा वजन पैदा नहीं कर तो लेता हुआ है। क्या है, इसने खड़ियां परे करके को और कारखाना लगा लिया। हमने शहतूत के दरख्त ही काट दिए, और बेदर्दी के साथ काटे, चोरों ने काटे, हुकूमतों ने काटे, महकमा जंगलात ने काट दिए। यानी फिर शहतूत उगाए का नहीं। दरख्त लगे तो फिर रेशम का कीड़ा आप ही आ आप ही आ जाता है। ये नहीं खुद तो नहीं आता, लेकिन उसके लिए तरद्दुद करना पड़ता है आपको। उसका जो लावा है, उसके जो कीड़े हैं बुनियादी, वो इंपोर्ट करके आप छोड़ दें, ये लगाएं। कम से कम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी बेल्ट्स मौजूद हैं, सिर्फ सड़कों के किनारे पे, पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1 अरब दरख्त लगाए जा सकते हैं, 1 अरब दरख्त। और फिर उसके बाद रेशम तो आप हासिल करेंगे, सो करेंगे, जो मैं $1 अरब से ज्यादा बता रहा हूं। यार इस वक्त आलमी मंडी में शहतूत की अपनी बड़ी वैल्यू है। शहतूत जो है वो $20 फी किलो, अगर आप जिसको हम उसको काला शहतूत कहते हैं। शहरों में तुम देख लो यार, देहात से आके हमारे शहरों में नहीं बिकता, 200-200 रुपए किलो मिलता है। बात मैं समझ नहीं रहा, शहतूत के दरख्त हमने खत्म कर दिए हैं तो उस दौरान अब रेशम का कीड़ा कड़ाई गोश्त खाता है। रेशम का कीड़ा ही नहीं रहा, रेशम का कीड़ा नहीं रहा, रेशम का कीड़ा नहीं रहा, तो रेशम भी खत्म होता जा यानी रहा है। हमें ये चाहिए कि पहले शहतूत के दरख्त लगाएं, उसके बाद कीड़ा चलो इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट एक दफा कर ले और उनको छोड़ दे, उसके बाद चल सो चल उनकी नर्सरियां बनती पहले चली कीड़े भी जाएंगी। मेरे वो खत्म हो गए। यार खुराक ही नहीं मिलेगी तो इसी तरह हमने बेरी का दरख्त खत्म कर दिया। काला शहतूत काला गौरी बहुत मुश्किल से मिलता है। काला शहतूत और काला गौरी, चिट्टे गौरी तो आम मिल जाए। बहुत है। तो बाबूजी ये शहतूत के पत्ते खाते हैं रेशम के कीड़े? शहतूत के पत्ते अच्छा, खाते वही हैं। उनका आपको अक्सर शहतूत के जब आप दरख्त देखते हैं उसके जो नए नए पत्ते निकलते हैं, ताजा ग्रीन पत्ते बिल्कुल, उसको आप अक्सर आप खाए हुए देखते हैं, कटिंग हुई। हाँ तो वो मैंने नहीं खाए होते, वो इसलिए रेशम के कीड़े वही नहीं उसका खाए। नहीं वो काढ़े के होते हैं, तुम भी खा ही लेते होगे, ऐसी कोई बात नहीं। और काढ़े में जो रेशम पैदा हुआ है ना वो कीड़ों के अलावा ये भी खुद बनाता रहा है। यार ये चंद साल पहले की बात है, स्वात और छांगा मांगा सिर्फ 2 जगहों पे 10,000 से ज्यादा खानदान रेशम की सनत से वाबस्ता थे, और वो महाना 20 से 25,000 रुपया। यानी आज से 10-15 साल पहले 20 से 25,000 का मतलब है कि आज 50 या 55,000 रुपया वो कमा लिया करते थे। आज भी अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए और हम ये जो शहतूत के दरख्त है इनके जंगलात आबाद करें तो पैसे ही पैसे हैं। बिल्कुल ठीक पूरे बात है। खानदान कमाई का जरिया बना सकते हैं इसको। वाकई में बड़ा हैरान होता हूँ कि रेशम का कपड़ा बड़ा मशहूर होता था और बड़ा
महंगा और हाई लेवल जेंट्री का समझा जाता था, वो अब खत्म ही हो गया हुआ है। जेंट्री भी बेचारी यही सूट जो ब्रांडेड होते हैं वही पहन पूर्ण के फूलों शिलों वाले चिड़ियां चुड़ियां बड़ी हुई गुजारा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हुकूमत को ही सारा कुछ चाहिए या ये खुद इंसान भी कर सकते हैं? नहीं, वो कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि बुनियादी तौर पे उसके लार्वा को इंपोर्ट करना, कीड़ों को इंपोर्ट करना, दोबारा एक मरी हुई डेड सनत को दोबारा से रिवाइव करना, ये हुकूमत की मेरा ख्याल हेल्प के बगैर शायद मुमकिन ना हो। थोड़ा सा हुकूमत इनिशिएटिव ले और लोगों को अवेयरनेस दे। लोग तो बेचारे बेरोजगार बैठे हैं, कुछ सोच के यार कुछ ना कुछ हमें करने के लिए दिया जाए, हम करें। यानी हुकूमत पनामा लीग का रट्टा सॉल्व करने की बजाय बारों रेशम के कीड़े लेने चली। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। पास इजी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कई दिनों से मुझे एक बात तंग कर रही है। मैं क्या तुमसे ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन कोई नहीं दे सकता। लाइमन को गलत बात पूछेगा, मैं शर्त लगा के कहूँगा। नहीं, तो और मैं तुमसे अफगानिस्तान से अमेरिका का इनकलाब पूछूंगा? Why not? गलत बात ही पूछूंगा। नहीं, why not? अफगान का इनकलाब पूछो। नहीं यार, ये जो बात बनी हुई है कि शादी का जो पहला साल होता है मर्द के लिए वो फख्र का साल होता है, बेशक। उसके बाद जो दूसरा साल होता है वो सब्र का साल होता है, और फिर जितने साल होते हैं वो जबर के साल होते हैं। आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? पहला साल तो आपने ठीक फरमाया है, फख्र का होता है। दूजा और तीजा गलत कर गए हो, इसको जरा उल्टा कर लो। पहला फख्र का, दूसरा जबर का, और फिर आगे 400 सबर का। ये मैं आम रूटीन की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो समर के हैं सारे। अच्छा, मेरे लिए सारे साल फख्र के। बात अच्छी। ओके, क्यों साथ फख्र के साथ औका पहली दफा सुना। हाँ, सचमुच कभी किसी ने फख्र के साथ हौका पर है, जबर के साथ पर ये तुम्हारे वाली। गौरी साहब, आप क्या कहते हैं इस बहस में, ये जो फख्र सबर और जबर की बहस है? बाबू जी, पहला ही साल फखर दा होंदा है, बाकी रबड़ दे होंदे ने, खिंच के लम्बे करने पैंदे। रबड़ के कौन से साल होते हैं गौरी यार, तुमने तो बिल्कुल ही दिल छड़ा हुआ। हालांकि आमान से जिस तरह तुम घर से तैयार होके आते हो, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है। लेकिन गौरी जैसे शख्स को देखो, घर में कितनी इज्जत मिलती, इज्जत ही होती है ना घर से बंदा तैयार हो गए। ये देख लो बेचारा घर से निकर पहन के आता है, इधर पैंट कोट लड़के पहना रहे। भाई जी, निकर में नहीं, हम निकर माना हंस गया यार। निकर तो मैं इस वजह से पहन के आता हूँ, टेनिस खेलता हुआ इधर आता हूँ। हाँ, ये टेनिस ही होता है, वो भी परजाई डोई से खेल रही होती है, ये आगे से अपने राकेट से बच रहा। टेनिस ही होता है, टेनिस ही। अच्छा दीदी जी, ऐसे पढ़े लिखे सोबर लोग जब तशद्दुद होता ना इन पे, कमरे की कुंडी लगा के ऊंचा पंजाबी गाना लगा लेते हैं। होठा उत्ते कुंडी लाल, मुंह कुछ ना कहो, मिलेगा जुल्म दा बदला। खबर क्या है जी? खबर आइंदा पूछोगे सालों के बारे में। खबर पड़े जी। जी, ईद के हवाले से खबर है, जहां ईद खुशियां लेकर आ रही है, वहीं पर आवाम को कुछ मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या मुश्किलात हैं ईद पे आवाम को? जी, ईद पर चलने वाली खसूसी ट्रेनों की बोगियों में कमी हो गई है। खस्ता हाल होने के बायस उन्हें ट्रेनों से अलग कर दिया गया और मुसाफिर छतों पर बैठकर सफर करने पर मजबूर। बहुत अच्छे, यानी ये बिल्कुल वो जो फूड औरतें नहीं होती घर में, उन जैसा हिसाब है रेलवे का। एन अफ्तारी के टाइम बता रही होती है, हाँ खजूरा तो मंगवाइया ही नहीं। अगर बेचारा खावा दाख के कहते चलो कोई बात नहीं, शरबत तो है ना, शरबत है पर चीनी मुक्की, पकौड़े तो है ना, बना लेने हैं ना, बेसन सुसरी पै गई। भाई ईद के दिन आपको पता चल रहा है 4 दिन पहले के बोगियां नाकस हैं या नहीं चलने वाली, आप इसका पहले बंदोबस्त करें। इंजन आपके कौन से पोलू पलवान है, इंजनों की वो हालत हो गई हुई है कि अमान से एक से वध बोगी लगाओ तो इंजन बेचारा खंगना शुरू कर दे। बल्कि एक बोगी भी सिर्फ इसलिए लगाते हैं जैसे बुजुर्ग के साथ एक बच्चा नहीं लगा लेते कि उंगल पकड़ के मसीते छोड़। इस तरह हमारे इंजनों के साथ एक बोगी लगानी चाहिए कि बाजी बोगी अब बाबे और मुल्तान पहुंचा। और खानेवाल से गुजरते हुए लोग कहते हैं
کہ یار بابا جی نو پٹڑیاں پار کرا دے. اس قدر بری حالت ہے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں جی کہ ناقص بوگیوں کی وجہ سے کم ہو گئی ہیں وہ. عید کا موقع ہے, آپ سب کو پتا ہے, آپ لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں, آپ کو روٹی کو چوچی نہیں کہتے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ عید والے دن کتنا رش ہوتا ہے, آپ اس کا پہلے بندوبست کریں. این عید کے موقع پہ یہ آپ اعلان کر رہے ہیں کہ بوگیاں کم پڑ گئی. کیا ہے اگلی خبر دکھ پری؟ جی اگلی خبر آپ کے مرشد کی ہے. میں صدقے جاؤں مرشد میرے, وہ دکھ پری تو نہ ہوئی, وہ تو کمال پری ہوئی. کیا کہتے ہیں میرے مرشد؟ جی یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں نواز شریف کو ڈاکٹر کی اجازت سے وطن واپس آنا چاہیے. میں صدقے جاؤں, دیکھو نا کیسا مدبرانہ بیان دیا ہے. صحیح سیاستدان ہے میرے مرشد. ان کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے متعلق میں بات کرنے لگا ہوں تو سوچ سمجھ کے کروں. ان کو باقی ڈاکٹر کی اجازت سے آنا چاہیے. ویسے بھی میرا خیال ہے میرے مرشد جو ہے نا, ان کو پتہ اب چل چکا ہے کہ سارا پنڈ بھی رہ جائے نا تو میں نہیں ہوں وزیر اعظم. اس لیے جو بھی وزیر اعظم بنے پھر وہ اس کی مرمت ٹھیک کرتے ہیں. اور میرا تو امان سے یہ خیال ہے کہ گیلانی صاحب کو ایک اکیڈمی کھول کے دینی چاہیے جس میں وہ سیاستدانوں کو بیان دینے سکھائیں. اچھا یار, گیلانی صاحب کی سیاست اپنی جگہ, لیکن گیلانی صاحب نے کبھی بھی, اور خاص طور پہ وزارت عظمیٰ کے دوران, کبھی بھی اس طرح کا کوئی ہارش بیان کسی کے بارے میں نہیں دیا. بالکل اپنے چہرے کی طرح طبیعت بھی پولائٹ ہے ان کی. مرشد اللہ تو آڈی حیاتی رکھے. اس سے زیادہ میں ڈسکس کروں گا تو یہ پھر آپ کی کو پرانی بات یاد کرا دے گا. آگے کیا کہتے ہیں لوگ؟ جی امریکہ سے خبر ہے اور بڑی عجیب و غریب ہے. ایک شہری نے بے پناہ محبت کی وجہ سے اپنے سمارٹ فون سے شادی کر لی. شادی کی تقریب ایک چرچ میں رسومات ادا کرتے ہوئے دوستوں کی موجودگی میں ہوئی. ویسے میری بات سنو, دیکھو ذرا اس چلنے کی بات نہیں ہے. پاکستان میں روزانہ کروڑوں لوگوں کو ان کی بیویاں کہتی ہیں اسی سے شادی کر لو, اسی سے کر لو. یار وہ تو چڑھ کے کہتی ہیں اس بیوقوف نے کار ہی لی ہے, عورتوں کی بات آئی فون سے شادی کر لی ہے, سمارٹ فون سے. حد ہو گئی ہے. کیا لڑکی والوں نے بتایا ہوگا خوبی ہے جی ساڈی کڑی چ واٹس ایپ بھی ہے, وائبر بھی پھڑ لیندی ہے, اور ساتھ جناب ٹانگو بھی ہے اس میں, سگنل بھی فل ہے جناب. اور ہم نے جو ہے میں بھی ایکسٹرا 3 بیٹریاں دی ہیں. چارجر ہم نے ایک ہی دیا, اگر خراب ہو جائے یا گواچ جائے تو پھر آپ یہ دوجا چارجر خرید لینا. ہن تہاڈی ہوئی نو ہے. آگے سے دولہے والوں نے کہا ہوگا یار اسی بھی تیاں والے ہیں, یہ دسو بیلنس کنا دیو گے؟ انہوں نے آگے سے کہا ہوگا جی ہم نے تو بیلنس صرف ایکو کال کے لیے ڈلوایا ہے, باقی ان کالاں تو ہی کرنی ہے نا, خرچہ بھی کرو نا. نام بھی تم نے آئی فون زنانہ چنا ہے. اگر مردانہ ہوتا تو آئی فون نہ ہوتا, آیا فون ہوتا. لا ایمن اس شادی کے اوپر وڈے تائے 33-10 نے لڑائی ڈالی ہے. کیڑا ان سمارٹ فون آ گیا سانو پوچھن ہی نہیں دے. سانو پہلے دس دے ساڈی ہن ویلیو کوئی نہیں, اسی بیاہ تے ہی نہ ہوندے. بڑیاں سانو رنگ ٹونا سناؤندے, اسی اللہ دی رحمت نال ساری زندگی کدی گندی رنگ ٹون نہیں بجائی. اج کل چنگا بڑا بزرگ آدمی سمارٹ فون نال بیاہ کر لیا, رنگ ٹون وجن ڈئی ہوندی ہے, کنڈی نہ کھڑکا سونی سیدھا ہی ہوندا. دادا 33-10 دا تے میسج نو بھی برا سمجھدا سی, وہ صرف کال ہی کراندا سی. یقین کرو جناب صاحب, ایک آؤٹ گوئنگ ایک انکمنگ تا زیادہ سے زیادہ مس کال نال میسج موسج, چوتھی ساڈے کو حرکت ہی نہیں سکتی. یہ اج کل تے ویکھو بالن گیلریاں بھی بنائی جان, اتوں انہاں نوں لاک کیتا ہوندا نے, فنگر پرنٹ نہ کھلنا انج کھلنا ہی نہیں. شوہے سارے جان دے اتھوں ہی پڑے, انہاں دی نیت اتھوں ہی پڑی جاندی ہے. ایویں جنانیاں بیچاریاں کلپدیاں, اینوں کدلی پیو نوں لاک کیتا ہے. سانو نہ کہ لاک کرنا کھلے پے ہوندے ہیں کیونکہ کردار یہ ہو جیا سی. اسی طرح ایک شوہر نے بیوی سے فون چھپانے کے لیے اس کو تھم امپریشن پہ لگایا ہوتا. بیوی کو کوئی شک ہوتا ہے, وہ رات کو اٹھتی ہے, شوہر گہری نیند سویا ہوتا ہے, بیوی اٹھ کے بار بار ٹرائی کرتی ہے, شوہر کا ہاتھ پکڑتی ہے, انگوٹھا یہاں لگاتی ہے لیکن کھلتا نہیں. شوہر کی آنکھ کھل جاتی ہے, شوہر کہتا ہے بیوقوف عورت, میں نے اس میں پاؤں کا انگوٹھا فیڈ کیا ہوا ہے. وہ ایک راٹا جے نہ بالاں دا اج کل.
ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। क्या बात है, शर्म हो यार। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। जी यहाँ मिले एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद आज 27वीं की रात है, शबे कदर है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करना है। मेहरबानी फरमाओ, ये जो कुछ दिन पहले नात सुना रहे थे वो जरा हमारे नाजरीन को भी सुनाओ और हम भी दोबारा सुन लें। वो तो जितनी दफा भी सुनी जाए मजा आ जाता है। जाहिद फखरी साहब का आम तौर पे तारुफ मिजाहिया शायरी है, लेकिन ये नात उन्होंने कमाल लिखी है, बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह। इसी ख्याल पर हम पहले भी एक बार नात पेश कर चुके हैं, नजराना अकीदत है। लेकिन अच्छा, ये इस नात की खास बात ये है कि ये जाहिद फखरी साहब ने 1976 में यानी सबसे पहले लिखी थी। अच्छा, बहुत खूबसूरत नात है। माशाल्लाह। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का जमाना मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, यूं मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके पीछे खड़े हो के नमाजें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भूल जाता मैं किसी ताक में आंखें रख के, भूल जाता मैं किसी ताक में आंखें रख के, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आपकी तरह बिठाता मैं उसे कांधों पर, आपकी तरह बिठाता मैं उसे कांधों पर, राह में आपका जब कोई नवासा मिलता। सुभान अल्लाह। जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जान फिदा करने की खातिर मुझे गज़वा मिलता। माशाअल्लाह। हश्र तक मेरी गुलामी यूं ही कायम रहती, हश्र तक मेरी गुलामी यूं ही कायम रहती, मेरी हर नस्ल को फखरी यही विरसा मिलता। इसी ख्याल पे दो शेर और है। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बात सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता। हर स्याह रात में सूरज है हदीसें उनकी, वो ना आते तो जमाने में अंधेरा होता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्या खूबसूरत ख्वाहिशात का इजहार है। मैं समझता हूं आज भी अगर हम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का लड़ पकड़ लें तो हमारे सारे मसले हल हो जाए। सारे बेड़े पार। पहली ही नात है डॉक्टर ताहिर शहीर की, क्या खूबसूरत उसने भी इजहार किया है। कह रहे अर्जो समा मेरे नबी को देखो, कह रहे अर्जो समा मेरे नबी को देखो, आप सा है ना हुआ मेरे नबी को देखो। सुभान अल्लाह। क्या कहने। सुभान। इससे बढ़कर नहीं मुमकिन कोई अजमत का मुकाम, वाह। हमसे कहता है खुदा मेरे नबी को। सुभान अल्लाह। वारे वाह, वारे वाह। जिसके किरदार की कुफ्फार गवाही देते, पैकरे सिद्ध को सफा मेरे नबी को दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमतें गर न ताकुब में फिरे फिर कहना, तुम लगा कर तो सदा मेरे नबी को देखो। सुभान अल्लाह। आए जिब्रील के ताइफ को मिटा दूं लेकिन, आए जिब्रील के ताइफ को मिटा दूं लेकिन, फिर भी हक में थी दुआ मेरे नबी को देखो। सुभान अल्लाह। तुमने लाना है बहारों को अगर संग अपने, वाह। तुमने लाना है बहारों को अगर संग अपने, जाओ फिर बादे सबा मेरे नबी को देखो। सुभान अल्लाह। वारे वाह। सुभान अल्लाह। बेशक। नेमतें जिसके लिए सब हुई तख्लीक यहाँ, बेशक।
ہائے اس فاقہ زدہ میرے نبی کو دیکھو نعمتیں جس کے لیے سب ہوئی تخلیق یہاں ہائے اس فاقہ زدہ میرے نبی کو دیکھو ان کا مسکن ہو میری آنکھیں امانت رکھ لو تم جب اے غار ہرا میرے نبی کو دیکھو دیکھنا ہے تمہیں قرآن جو مجسم طاہر آؤ اور آ کے ذرا میرے نبی کو دیکھو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین یہ تھا آج کا اسپہ حال خوش رہیں رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ